Hello learners and welcome to your own channel LIY English Learn It Yourself. In this video we are going to learn class 12th subject English of Maharashtra State Board section 2 poetry 2.4 and it is a very beautiful poem which is titled as Have You Earned Your Tomorrow, written by Edgar Guest. इस वीडियो में हम हैव यू अर्नड योर टुमारो 2.4 क्लास 12 की इस पोएम को डिटेल में पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और समझेंगे कि क्या मैसेज है इस पोएम का. Before we start with the poem, let us know more about the poet Edgar Guest. He was a British-born American poet who was popular in the first half of the 20th century and became known as द पीपल्स पोएट. एडगर गेस्ट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था. ब्रिटिशर थे वो बाय बर्थ, बट ही वाज रेज्ड इन अमेरिका और वो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज ही यूज्ड इन हिज पोएम्स. उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी और वो उनकी ख़ास बात ये थी कि वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में होती थी कि लोगों में वो बहुत जल्दी फेमस और पॉपुलर हो गई. And his poems often had an inspirational and optimistic view of everyday life. उनकी पोएम से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. इस वजह से भी उनकी जो पोएम है वो बहुत ज़्यादा फेमस थी और उनको पीपल्स पोएट कहा जाता था. Now let us start with the poem. The central theme of the poem is, of course, it is an Edgar Guest poem, so it is an inspirational poem. And in this poem, the poet wants us here means readers, whoever is reading the poem, to introspect about the treatment towards the people around us. इस पोएम में पोएट एडगर गेस्ट हमसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं और उनके सवाल पूछने का मकसद ये है कि हम अपने आप से सवाल करें. वी आर फोर्स्ड टू इंट्रोस्पेक्ट इनटू आवर बिहेवियर. वी आर फोर्स्ड टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स अबाउट द ट्रीटमेंट दैट वी गिव टू द पीपल अराउंड अस. कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, हम किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी में हम इफ़ेक्ट करते हैं. And the poet is of the opinion that only if we utilizes our today fruitfully by doing something worthwhile, by doing something that add value to the life of others, that bring joy and happiness into the life of others, poet feels then only we deserve a tomorrow. Poet को लगता है कि अगर हम अपना आज का समय, हमारा प्रेजेंट टाइम, आज का दिन अच्छे से बिताते हैं, फ्रूटफुली बिताते हैं, लोगों की हेल्प करके, लोगों की मदद करके, लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाके, तभी हमारा जो दिन है वो सही से बीता है और तभी हम हकदार है कि हमें कल का दिन भी मिले. So this is the central theme of the poem. Now let us look at the poem line by line and stanza by stanza. There are 4 stanzas in the poem and 4 lines each in the stanza, so you can say there are 4 quatrains in the poem. Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? तो आप देख सकते हैं पहले ही स्टैंजा में पोएट हैज़ पुट 3 क्वेश्चंस. पोएट ने 3 क्वेश्चन डाले हैं फर्स्ट ही स्टैंजा में. द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ इज़ अ क्वेश्चन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रीडर. पहली ही जो लाइन है वो क्वेश्चन है रीडर्स के लिए. इसमें वो पूछते हैं कि क्या कोई खुश है कि आज उनकी मुलाकात आपसे हुई. In a day when we are moving, we are doing our work, we happen to meet so many people. So the poet wants to know, and he wants us to ask ourselves that did we meet the person nicely so that he's happier now? Does anyone remember that you spoke to him today? And of course we speak so much in a day, we speak to so many people and sometimes it's not very important, but here poet wants us to know, poet wants us to realize that whatever we should speak, it should be worthwhile, it should be worth remembering by the other person. तो यहाँ पे जो पोएट है वो हमसे सवाल कर रहा है. इनडायरेक्टली वो हमें मैसेज देना चाहते हैं कि जब हम किसी से मिले तो हमें
ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह से मिले कि वो खुश है अगर तो और ज़्यादा खुश हो जाए आपके मिलने से। या अगर आप किसी से भी बात करते हो दिन भर में तो आपने उसको इस तरह से अच्छा फील करवाना है। यू शुड टॉक सो नाइसली टू द पर्सन कि वो आज के दिन आपको याद रखे कि मैंने आज इस इंसान से बात की एंड ही वॉज सच अ नाइस पर्सन। This day is almost over and toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? पोइट कहते हैं तीसरी लाइन में कि आज का जो दिन है वो ख़त्म हो गया है। इट्स टॉइलिंग टाइम इज़ थ्रू। टॉइलिंग टाइम मीन्स टाइम स्पेंड इन हार्ड वर्क। जितना ऑफकोर्स हम दिन के समय बहुत काम करते हैं, बहुत बिजी होते हैं, वी आर ऑलवेज डूइंग समथिंग। ओनली टुवर्ड्स द नाइट वी स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन रेस्ट। पूरा दिन भर हम काम करते हैं और शाम के समय में, रात के समय में हम आराम करते होते हैं। उस टाइम पे पोएट हमें पूछ रहा है कि अब ये दिन पूरा ख़त्म हो चुका है, ये इसका जो टॉइलिंग टाइम है, मेहनत का दिन, मेहनत भरा जो दिन था वो अब ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। अब इज़ देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। तो इतने दिन भर में जो तुमने इतने सारे लोगों से बात की, इतने सारे लोगों से मिले हो, तो क्या दिन के एंड में जब दिन ख़त्म हो चुका है, जब आपको कोई याद कर रहा होगा, सो विल दे हैव अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। क्या तुमने किसी को इस तरह से ट्रीट किया है कि वो आपके बारे में अच्छी बातें कहेगा, आपको अच्छी तरह से याद करेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Second stanza का first line भी you can see is a question. पोएट यहाँ पे पूछते हैं कि क्या अगर आज आपको रास्ते में आपका कोई दोस्त, पुराना दोस्त मिल गया, तो आपने उसे अच्छे से ग्रीट किया, चीयरफुली ग्रीट किया, हैप्पीली उसे थोड़ा सा टाइम दिया, उससे अच्छे से बात की, और डिड यू जस्ट गिव अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी? चर्लिश मीन्स रूड, सॉर्ट ऑफ हाउडी मीन्स इट्स जस्ट एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग। तो ऑफकोर्स हम बहुत बिजी होते हैं, हम कहीं जा रहे होते हैं, अगर हमें हमारा कोई फ्रेंड मिल जाए, क्वेश्चंस के ज़रिए पोएट हमें ये मैसेज देते हैं कि अगर हम कितने भी बिज़ी हो, हम कहीं इम्पॉर्टेंट जगह भी जा रहे हो, अगर हमें कोई रास्ते में फ्रेंड मिलता है तो हमें बस रूडली उसे हाउडी कह के गायब नहीं हो जाना चाहिए, अपने रास्ते पे नहीं निकल जाना चाहिए, बल्कि हमें रुक कर थोड़ी देर ठहर कर उसे चीयरफुली ग्रीट करना चाहिए, सो दैट ही फील्स नाइस। दिस इज़ हाउ यू ट्रीट योर फ्रेंड। Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? तो दिन भर में जब आप इतना समय बिताते हो, बिज़ी रहते हो काम के वक्त, तो क्या पूरा दिन जो आपने काम किया, तो क्या आप सेल्फिश, प्योर थे, सिंपल थे, और यू जस्ट रश्ड अलोंग द वे? मतलब क्या आप पूरा टाइम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपने कामों के बारे में सोच रहे थे? वर यू सेल्फिश? डिड यू नॉट अटेंड टू अदर पीपल? डिड यू नॉट ट्रीट अदर पीपल नाइसली? या आपने आपका दिन इस तरह से बिताया कि कोई एक इंसान कहीं पे बहुत शुक्रगुजार है आपके लिए, बहुत ग्रेटफुल है, आपने उसके लिए कुछ ऐसा कहा या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो आपके लिए बहुत शुक्रिया अदा कर रहा है अपने दिल में। So here the poet gives the message that we should always be looking out to help other people and not be just selfish and always thinking about ourselves, our life and our work. Now let's move on to the third stanza. Can you say tonight in parting with the days that's slipping fast that you helped a single brother of the many you passed? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with a courage look ahead? बहुत ब्यूटीफुल स्टैंजा है ये, स्पेशली द लास्ट लाइन। सो यहाँ पे पोएट हमें पूछते हैं कि आज अब ये दिन रात का समय है, दिन पूरा बीत गया है, टाइम इसी तरह से गुज़रता जाता है, ज़िंदगी इसी तरह से चलती जाती है। तो जैसे कि दिन पूरा बीत गया, तो आपने किसी या सिंगल ब्रदर का मतलब बायोलॉजिकल ब्रदर ऑफ कोर्स नहीं है, इट मीन्स दैट एवरी फेलो ह्यूमन बीइंग शुड बी अ ब्रदर टू यू। तो क्या आप जो आपके आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने उनकी आपने हेल्प की, आपने उनकी मदद की?
इज़ अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड? क्या आपने किसी से इतनी अच्छी बात कही, किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया जिसकी वजह से आज किसी का दिल बहुत खुश है? डज अ मैन हुज होप्स फॉर फेडिंग, क्या आपने किसी ऐसे इंसान से जब मिले जो हु हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग इन हिज लाइफ, जो अपनी ज़िंदगी में सारी उम्मीदें खो चुका है, अपनी ज़िंदगी से हार गया है, उसके अंदर अब कुछ भी जीने की इच्छा नहीं है? डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग, जिसकी उम्मीदें सारी ख़त्म हो रही थी, क्या आपने उसे इस तरह से इंस्पायर किया, उस तरह से उसे पॉजिटिव एनर्जी दी दैट विद अ करेज नाउ ही लुक्स अहेड, कि अब वो उसमें ज़िंदगी जीने की उमंग जाग चुकी है और वो अब बहुत पॉजिटिव है, एंड नाउ ही इज़ इंस्पायर्ड नाउ टू लिव लाइफ ब्यूटिफुली। सो यहाँ पे हमें पोएट ये भी मैसेज देते हैं कि हमें किस तरह से अपनी सोसाइटी में मूव करना है, किस तरह से हमें हर जो जिन लोगों से हमारी मुलाकात होती है, या जो हमारे अपने हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे ब्रदर्स हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, जिस तरह से भी हम कर सके उनकी कोशिश करना चाहिए। एंड द लास्ट स्टैंजा, did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? और जो मेन एसेंस है पोएम का, जो मेन मैसेज देना चाहता है, वो इस लास्ट स्टैंजा में है पोएट एडगर गेस्ट का। वो पूछते हैं कि क्या आज का दिन उनके हिसाब से हर दिन हर समय जो है एक अपॉर्चुनिटी है कि जिससे हम अच्छी चीज़ करें, अच्छे काम कमाएं। सो वो इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि क्या आज का दिन आपने वेस्ट कर दिया? उनके हिसाब से अगर हमने किसी भी एक इंसान को खुश नहीं किया, या हमने दिन भर में एक ऐसा इंसान नहीं कमाया जो आपकी वजह से खुश है, जो आपकी वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत चेंज हुआ है, वो बहुत उसके अंदर उम्मीद जगी है, तो ही आपने दिन को अच्छे से बिताया है, उनका ये कहना है। इसीलिए वो पूछते हैं कि डिड यू वेस्ट द डे, और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, उनके हिसाब से आपने आज का दिन बर्बाद कर दिया। सो वो फर्स्ट लाइन में यही कहते हैं, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंड, क्या आज का दिन आपने वेस्ट कर दिया, क्या आज का दिन आपने खो दिया जो एक अपॉर्चुनिटी थी किसी को खुश करने की, और क्या आपने आज का दिन अच्छे से बिताया, और वॉज इट सोरली स्पेंड, सोरली मीन्स आपने आज का दिन जिस तरह से सोचा था कि आप बिताओगे उस तरह से नहीं बीता, आप खुश नहीं हो, इट वॉज़ नॉट अ वेरी गुड डे फॉर यू। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, जिस तरह से आपने टाइम बिताया आज के दिन का, तो क्या दिन भर में जितने लोगों से मिले आपने उनके ऊपर अपनी काइंडनेस की, यानी दया जिसको हम कहते हैं, बहुत अच्छा नाइस पोलाइट बिहेवियर का मार्क्स छोड़ा। ट्रेल मीन्स मार्क्स और साइन, सीरीज़ ऑफ मार्क्स जिसको कहते हैं निशानियाँ। तो जहाँ पर भी आप गए, जितने भी लोगों से आप मिले, जितने भी लोगों से आपने बात करी, तो वहाँ पे आपने अपनी काइंडनेस की जो है निशानियाँ छोड़ी, और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, या फिर आपने, स्कार का मतलब होता है दाग, डिसकंटेंट का दाग छोड़ा वहाँ पे। मीन्स अगर आप रिकॉल करते हो अपने दिन भर के इंसिडेंट्स, तो जितने भी लोगों से आप मिले, क्या आप कह सकते हो कि आपने उनसे बहुत अच्छे से बिहेव किया और वो इंसान अभी खुश होगा, आपके बारे में अच्छा कहेगा, या फिर आपने उसको इस तरह से ट्रीट किया, या आपने इस तरह से टाइम बिताया कि अभी आपके दिल में सिर्फ एक डिसकंटेंट है। डिसकंटेंट मीन डिससेटिस्फैक्शन, कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर आप अपने आप से पूछो कि क्या आप खुश हो जिस तरह से आपने दिन बिताया, या आपके अंदर डिसकंटेंट है। एज़ यू क्लोज़ योर आइज़ इन स्लम्बर, स्लम्बर मीन स्लीप, अभी रात के समय जब आप सोने वाले हो, आँख बंद करने वाले हो, तो क्या सोचते हो आप अपने दिन बिताए हुए दिन के बारे में, कि गॉड वुड से, आपको लगता है यहाँ पे पोएट हमें कह रहा है कि हम खुद अपने जज होने चाहिए, हमें खुद हर रात को सोचना चाहिए कि गॉड वुड से, आपको क्या लगता है कि हैव यू दैट यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे, आज का दिन आपने इस तरह से बिताया कि आप कह सकते हो कि आपको गॉड
जो है कल भी एक दिन देगा, क्योंकि आज की अपॉर्चुनिटी को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। सो लास्ट एंड द फाइनल मैसेज ऑफ द पोएम, वो ये कहना चाहते हैं पोएट एडगर गेस्ट कि हर दिन, हर समय, हर मोमेंट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप उसको वेस्ट कर दोगे तो उनके हिसाब से यू डू नॉट डिज़र्व अ टुमारो और यू डू नॉट डिज़र्व अ बेटर फ्यूचर। सो इट्स लाइक कि आज के दिन अगर आप अच्छी बीज बोगे तो कल ही आपको उसका फ्रूट मिलेगा। सो आज का दिन हमें अच्छे से बिताना है, हर दिन को, प्रेजेंट टाइम को जी भर के जीना है, दूसरों को जिलाना है, और हर जगह खुशियाँ, हैप्पीनेस बांटनी है, सबको हेल्प करनी है। इस तरह से ही अगर आप दिन बिताओगे तो ही आप कह सकते हो कि गॉड ने आपको कल का दिन दिया है। दैट वे ओनली यू डिज़र्व अ टुमारो बाय गॉड। So that was the end of the poem. Let us summarize. Very simple poem, very simple message. The poem inspires us to do good deeds and it teaches us to check. यहाँ पे पोएट ने पूरी पोएम में क्वेश्चंस यूज़ किए हैं, बट ऑफ कोर्स वो ये क्वेश्चंस के आंसर हमसे चाहते नहीं हैं। वो चाहते हैं ये क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछें, खुद चेक करें अपने आप को कि हमारी एक्शंस कैसी है, हमारी डीड्स कैसी है, और उस हिसाब से अगर हमें लगता है कि हमें सुधारने की ज़रूरत है, हम और बेटर कर सकते हैं, देन वी शुड डू इट फॉर द बेटर टुमारो। क्योंकि पोएट के हिसाब से अगर आज का दिन ही हम अच्छे से बिताएंगे, देन ओनली वी डिज़र्व अ बेटर फ्यूचर और बेटर टुमारो। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।